यहाँ पे जाओ, यहाँ पे just wait. Yes, I think screen is visible now. Presentation is visible, students. Student, presentation is visible or not? Yes, ma'am. Is it visible? Okay, let us start. And again, we have already covered now one more topic in this block, speed and velocity. Okay, so now in our chapter there are two main concepts left. One is acceleration, another is Newton's law of motion with their explanation and their with numerical problem solving. Only the two articles are left. Newton's law of motion we will go next time. Acceleration concept will be completed here. Okay, so let us go for what do we mean by acceleration. When we have displacement and it is changing with time, we are moving, then we come to the concept of speed or velocity. If the direction is given, then it will be velocity. Now how this velocity is changing with time, how the velocity is changing with time, that is called acceleration. ओके जो रेस देते हैं ना हम, दैट रेस जो हम रेस दे रहे हैं उससे क्या होगी, वेलोसिटी चेंज हो रही है, और वेलोसिटी जब चेंज होगी तो हम बोलते हैं ना एक्सीलरेट कर देते हैं ऐसे, या रेस देते हो जिसे तुम कहते हो नाउ, दैट इज मीन्स यू वांट टू एक्सीलरेट योर व्हीकल. ओके, सो इट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी. लेट मी टेक द डिजिटल पेन ऑल्सो. वेयर इज माई पेन? ओके, so this rate of change of velocity is called acceleration. ओके, रेट ऑफ चेंज की जब हम बात करें, जब हम फिजिक्स में रेट वर्ड लिखते हैं ना, इट सिंपली इम्प्लाइज दिस क्वांटिटी इज चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम. दिस क्वांटिटी इज चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम. डिस्टेंस के साथ भी कोई क्वांटिटी वेरी कर सकती है, तब हम स्पेस रेट लिखते हैं. ठीक है, एंड दैट इज कॉल्ड ग्रेडियंट. इट विल बी लीव दैट मैटर. नाउ वी आर डिस्कसिंग द rate of change, means we whatever quantity we are talking about, that is changing with time. Okay, because acceleration is talking about velocity, how fast or how slow it is changing with time. Velocity is vector, so your acceleration is also a vector quantity, and if it is a vector quantity, you have to give its direction. What will be the direction? Whatever is the direction of the force, or whatever is the direction of the velocity, that will be the direction of acceleration. Okay, force अभी हम आगे न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन कर देंगे, then this sentence will be more clear. For the time being, you have to remember that acceleration is having the same direction as that of velocity. Okay, now if we say our car is initially moving with velocity u, okay, any value it can have, and say it is time t1. After some time, you note it down, its velocity becomes v at another time t2. एक बार 9 बजे देखा, फिर 9:10 पे भी टाइम नोट किया हमने. ठीक है, तो t1 मतलब 9 o'clock, t2 मीन्स 9:10, 9 o'clock with 10 minutes. Okay, and then its velocity has been changed, it is becoming v. Then change in velocity, how much velocity has been changed? When we talk about change, it means you are talking about final value minus initial value. So final value is v, initial value is u. So change in velocity is final velocity v minus initial velocity u. And what is the time interval? 10 मिनट लिए ना हमने, 9 बजे यहाँ से नोट किया था, फिर अगली रीडिंग 9:10 पे ली थी. तो अगर पूछूं कितना टाइम इंटरवल, तो आप दोनों को क्या करोगे, माइनस करोगे. ठीक है, so time interval is t2 minus t1. So we have defined acceleration as change in velocity upon time taken. So v minus u upon t2 minus t1. Velocity is having units meter per second, time is having second, so meter per second square. Okay, these are the units, SI units of acceleration. Because it is related to velocity, velocity can have instantaneous value,
average value, uniform value. So accordingly we will define the acceleration. Let us go further with the types of acceleration. Next, first one is average acceleration. Okay, first one is average acceleration. Just go through the slide and then I will go further. It is talking how you can accelerate your vehicle. Acceleration is related to velocity. Velocity have two things. One is its magnitude and another is its direction. Oh, pen is not there. Velocity. What was there in the velocity? There was magnitude like 40 km per hour, 30 km per hour, and then there was direction towards north, south, up, down, left, right. So if you want to change the velocity, what you can do, you can either change the magnitude और यू कैन चेंज द डायरेक्शन. आप सीधा जा रहे थे, आपने लेफ्ट टर्न ले लिया, फिर भी हम करें चाहे स्पीड आपकी 40 रहेगी, even then you say now the acceleration is there. So here I am writing the same thing. There are two ways to accelerate. Either you change the speed or you change the direction, or you can change the both also. Okay, this we have covered. Units. If a particle has an acceleration of 5 meter per second square and somebody says comment on this statement, a body has an acceleration of 5 meter per second square, comment on this statement. What will you say? You will say that after every 1 second its velocity change by 5 meter per second. Okay, that velocity is changing by 5 meter per second in every second, or you can say it is moving with velocity 5 meter per second at t equal to 1. अगले हाफ में फिर से 5 से इंक्रीज होगी, देन इट बिकम्स 10 मीटर पर सेकेंड, और फिर t इक्वल टू 3 पर क्या हो जाएगी, एट t इक्वल टू 3 सेकेंड इट बिकम 15 मीटर पर सेकेंड, एट t इक्वल टू 4 सेकेंड इट विल बी 20 मीटर पर सेकेंड. ओके, इफ एक्सीलरेशन इज पॉजिटिव इट मीन्स द वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग. If acceleration is negative, it means velocity is decreasing. There can be friction, or you may have been you are applying the brakes. Okay, time moment to moment, because the velocity changes by each and every moment, so does the acceleration. So we have already defined velocity. Instantaneous velocity v is equals to dx by dt. Okay, displacement is vector, वेलोसिटी इज वेक्टर. ये फॉर्मूला हमने कल किया था, v इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी. और अगर मैंने यहाँ पे मोड लगा दिए हैं, मोडुलस मीन्स अभी मैं सिर्फ मैग्नीट्यूड की यहाँ पे बात कर रही हूँ, मैंने डायरेक्शन को थोड़ी देर के लिए क्या किया, इग्नोर किया. ठीक है, देन इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन a इज इक्वल्स टू डी वी बाई डी टी. इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन निकालना है, यहाँ के इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालनी है, तो आपको हमेशा याद रखना है कि आपको डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू टाइम. इंस्टेंटेनियस की बात जब भी करेंगे, ठीक है, कल हमने किया भी था, द टाइम इंटरवल शुड बी वेरी वेरी स्मॉल. तो ये हमें एक फॉर्मूला यहाँ से मिल गया है इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन का, वो हमेशा याद रखना है, क्योंकि अभी एक और एक्सीलरेशन आएगा, उसका फॉर्मूला अलग है. इफ इन द क्वेश्चन ही हैज़ गिवन यू सम वेलोसिटी एंड आस्क्ड यू टू फाइंड इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, तो आप क्या करोगे, dv बाई डी टी करना है. dv बाई डी टी करने का क्या मतलब है कि आपको उसका डेरिवेटिव निकालना है, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू द टाइम फाइंड आउट करना है. दिस इज एवरेज एक्सेलरेशन. ठीक है, एक पर टाइम इंटरवल दिया 20 सेकेंड का, 40 सेकेंड का, तब आपको बताना है कि हमारी वेलोसिटी किस हिसाब से चेंज हुई थी, व्हाट वाज इट्स रेट ऑफ चेंज. Instantaneous acceleration, because acceleration is a vector quantity, so a is equals to dv by dt we have written. और in terms of displacement, displacement के टर्म में भी हम इसे डिफाइन कर सकते हैं ना. हमने क्या लिखा था, acceleration a is equals to dv by dt and v equal to dx by dt, और in 3 dimension you can write v equal to dr by dt, and acceleration is dv by dt. We know this. Now if we substitute for velocity, what will become, v की जगह आपने क्या लिख दिया, dr by dt. Now this acceleration a becomes d square r
अपॉन डी टी स्क्वायर। तो ये एक्सीलरेशन को अगर आप एक्सप्रेस करोगे इन टर्म्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट तो ये सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, डी स्क्वायर अपॉन डी टी स्क्वायर, दिस इज सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। ठीक है, अगर अब यहाँ पर हम इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन की बात करते हैं, 3 डायमेंशनल मोशन है हमारे पास, तो आर वेक्टर पोजिशन वेक्टर इज एक्स आई कैप वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। द वेलोसिटी कैन बी रिटन एज वी एक्स आई कैप वी वाई जे कैप प्लस वी जेड के कैप, तीनों एक्सिस के लॉन्ग उसका कंपोनेंट है। ठीक है, सिमिलरली एक्सेलरेशन को हमने कंपोनेंट फॉर्म में लिखा है। नाउ ए एक्स इक्वल टू डी वी एक्स बाय डी टी और डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पर इस इक्वेशन में यहाँ पर ए वेक्टर इक्वल टू डी वी बाई डी टी में ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दूँ दिस एंड देन वी इक्वेट कोफिशिएंट ऑफ आई कैप ऑन बोथ साइड, कोफिशिएंट्स ऑफ जे कैप ऑन बोथ साइड, कोफिशिएंट ऑफ के कैप ऑन बोथ साइड, देन यू आर गोइंग टू गेट दिस टाइप ऑफ फॉर्मूला। सिमिलरली ए वाई लिखना है तो क्या होगा, वेलोसिटी का कंपोनेंट y के लॉन्ग कैसे चेंज हो रहा है, दैट विल गिव यू एक्सीलरेशन अलोंग y एक्सिस। हाउ द डिस्प्लेसमेंट इज चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम, सो यू कैन राइट डी स्क्वायर वाई अपॉन डी टी स्क्वायर। ये हमारे पास ए वाई का फॉर्मूला हो गया, y के लॉन्ग क्या चेंजेस आ रहे हैं। सिमिलरली आप z के लॉन्ग भी फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, तो अगर एक्सीलरेशन अलोंग x एक्सिस निकालना है तो वेलोसिटी का सिर्फ x कंपोनेंट लेना है। ठीक है जी, y कंपोनेंट निकालना है तो वेलोसिटी का y कंपोनेंट। क्लियर, एक्सीलरेशन डिटरमिन करता है कितना फास्ट या कितना स्लो चेंज करो। अगर दो बॉडीज हैं, एक का एक्सीलरेशन है 30 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एंड फर्स्ट अनदर बॉडी इज हैविंग एक्सीलरेशन ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इट मीन्स योर फर्स्ट व्हीकल विच इज हैविंग एक्सीलरेशन ऑफ 30 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दैट इज एक्सीलरेटिंग मोर, वो बंदा बहुत फास्ट जा रहा है, बहुत तेज उसकी वेलोसिटी चेंज होता जा रहा है। ठीक है, ऐसे कह सकते हैं कि एक के पास बाइक है और वो रेस दे रहा है और एक बंदा साइकिल पे जा रहा है और वो साइकिल की पैडल तेज मारना शुरू करूंगी तभी तो मेरी साइकिल की स्पीड बढ़ेगी ना, और कितना तेज वो पैडल मारा है अकॉर्डिंगली मैंने कह दिया कि उसका एक्सेलरेशन 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। गियर वाली साइकिल की बात नहीं कर रही मैम। ठीक है, और एक के पास बाइक है, अब बाइक के पास तो मोटर है, मशीनरी है। ठीक है, तो आप उसको एक्सेलरेट करोगे तो मे बी उसका एक्सेलरेशन क्या हो 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है जी, तो एक्सीलरेशन आपको बता रहा है कि कोई व्हीकल कितनी जल्दी स्पीड पकड़ लेगा। ठीक है जी, चलो एक्सीलरेशन में हमने इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन की बात की है, उसके कंपोनेंट्स की बात की है अभी। अब ये देखो, ये क्वेश्चन है जो अभी हमने फॉर्मूला किया ये उस पर बेस्ड है। ठीक है, तो इसे थोड़ा सा अपन ध्यान से देखते हैं। देखो क्या दिया उसने। ठीक है, अपने पास अभी तक हमने 3 चीजें कवर की हैं। पेन चला जाता है बार बार। अब यहाँ पर उसने पोजीशन ऑफ ए कार ऑन ए स्ट्रेट रोड विद टाइम टी इज गिवन एंड ही से कि कोई व्हीकल है उसकी पोजीशन टाइम पर इस तरह से डिपेंड करती है। दिस इज द डिपेंडेंसी ऑन टाइम। एक्स को मीटर में लिया है, टाइम को सेकेंड में। 10 + 25t + 5t स्क्वायर। व्हाट ही इज आस्किंग यू, ही इज आस्किंग यू टू फाइंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी नॉट एक्सीलरेशन, सॉरी, v इक्वल टू dx बाय dt। ठीक है, तो ये एक्सीलरेशन की सॉरी वेलोसिटी के लिए मेरे पास फॉर्मूला होगा dx बाय dt। देखो उसने x एक्सिस दी है ना यहाँ पे, इसका मतलब वो x इसके अलोंग मूव कर रहा है, तो मैं लास्ट में लिख दूंगी दिस v इज अलोंग x एक्सिस, क्योंकि उसने डिस्प्लेसमेंट में लिखा ही है, x एक्सिस दी है। ठीक है, तो आई कैप लिख सकते हो आप, लास्ट में बोल सकते हो दिस विल बी इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो उसने इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी पूछे तो देखो आपको टाइम इंटरवल नहीं दिया, ही इज नॉट गिविंग यू टाइम इंटरवल, ही इज गिविंग यू टाइम t = 1 सेकेंड, t = 5 सेकेंड और t = 10 सेकेंड। 3 टाइम दिए हैं और तीनों के हिसाब से आपको उसका वेलोसिटी फाइंड आउट करना है। तो वेलोसिटी कैसे निकालते थे, dx बाय dt से। ठीक है, मैंने x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट की है, टर्म्स को सेपरेट कर लिया। 10 क्या है, कांस्टेंट, और अगर 10 तो नंबर है, वो थोड़ी ना टाइम के साथ बदल जाएगा। 10 रुपये हैं, आप स्पेंड कर ही नहीं रहे टाइम के साथ, तो 10 ही रहेंगे। तो d बाय dt जो डिफ्रेंशिएशन होती है ना बेटा, सभी ध्यान से सुनो,
वो डिटरमिन करती है कि कोई क्वांटिटी चेंज हो रही है कि नहीं। और अगर कोई कांस्टेंट है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, प्लैंक कांस्टेंट है, ठीक है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, 2.3 है, 10 है, देन दिस विल नॉट चेंज विथ टाइम, सो डेरिवेटिव ऑफ दिस 10 विल बी 0। नाउ हाउ टू फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ 25t, डी बाई डी टी ऑफ 25t, ठीक है। तो 25 नंबर है, हम उसे ब्रैकेट से बाहर लेते हैं और ये हो गया डी बाई डी टी, और यहाँ पे टी की पावर ये 1 भी लिख सकती हूँ मैं, ऐसे भी लिख सकती हूँ ना, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब केयरफुली ऑब्जर्व करना, तो नंबर 25 एज इट इज, डेरिवेटिव का क्या रूल है यहाँ पे, कितनी 25। हाँ 25 आएगा, शाबाश। डेरिवेटिव का ये रूल देखो एक बार, सिर्फ रिमाइंड करा देती हूँ, बहुत दिन बाद पढ़ रहे हैं ना। मल्टीप्लाई ओल्ड पावर, फंक्शन जो भी पावर है आपको उसे मल्टीप्लाई करना है, फिर उस फंक्शन को लिखना है और उसकी पावर को क्या करना है, 1 से रिड्यूस करना है, एंड रिड्यूस द पावर बाय 1। तो अभी आपके पास ये क्या हो गया, 25 और टी की पावर 0, टी की पावर 0 मीन्स इट विल बी 1, तो 25, तो ये क्या आ गया आपके पास यहाँ पे 25 आ गया। हाउ अबाउट दिस टी स्क्वेयर, 5 एज इट इज। अब टी स्क्वेयर का अगर आपको डेरिवेटिव निकालना है, डी बाई डी टी, सिर्फ याद करवा रही हूँ, मुझे पता है मेरे बच्चों को आता है। क्या रूल है, पावर कितनी है टी की, 2, मल्टीप्लाई बाय ओल्ड पावर, फंक्शन रिड्यूस द पावर बाय 1, 2 थी ना, 2 को में से एक 1 माइनस कर दिया, तो ये 2 टी रेज टू पावर 2 माइनस 1 1, और यू कैन राइट इट एज 2t, तो ये 2t मैंने यहाँ पर ब्रैकेट में लिख दिया। क्लियर है। अब ये मेरे पास वेलोसिटी की वैल्यू आ गई है एट एनी टाइम t, व्हाट इज दिस वैल्यू, इट इज 10t प्लस 25, ये आपके पास वेलोसिटी की वैल्यू आई है। कब, देखो इसमें टाइम नहीं है, एट एनी इंस्टेंट t, एट एनी मोमेंट t, दिस इज द वैल्यू ऑफ वेलोसिटी, ठीक है। अब यहाँ पर अब उसने क्या पूछा, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी तो पूछे, ये टीएच सेकंड पे है। अब टी की वैल्यू 1 पुट कर दो और इसकी वैल्यू निकालो, फिर टी इक्वल टू 5 पुट करो और टी इक्वल टू 10, और तीनों इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकाल के दिखाओ फटाफट। 35, 75, एक वैल्यू आएगी हमारे पास 35, शाबाश। 75, 125। 125, तो ये हमने यहाँ पर इवेल्युएट करके दिखा दी सारी वैल्यूज। देखो थोड़ा सा स्लो स्लो लेके चलती हूँ क्योंकि अभी मैं तुमसे मिली ही नहीं ना, मुझे पता नहीं मेरे बच्चों को कितना सारा आते हैं। वी एक्स इज इक्वल टू 25 प्लस 10t, तो फर्स्ट पार्ट था हमारे पास टी इक्वल टू 1 सेकेंड था, तो टी की वैल्यू आपने क्या पुट कर दी यहाँ पर, 1 पुट कर दी, सोल्व कर दिया 35 मीटर पर सेकेंड। सेकेंड पार्ट क्या दिया था मैम ने बोला फाइंड द वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट इक्वल टू 5 सेकेंड, तो आपने ये जो टी था इसकी वैल्यू 5 कर दी, सॉल्व कर दिया, दिस गिव्स यू वेलोसिटी 75 मीटर पर सेकेंड। सिमिलरली टी इक्वल टू 10 सेकेंड जब आप पुट करोगे तो वी एक्स की वैल्यू क्या आई है, 125 मीटर पर सेकेंड। तो अगर हम ऑब्जर्व करें इसे, तो फर्स्ट सेकेंड पे इसकी वेलोसिटी 35 थी, 5 सेकेंड पे 75 हो गई, और 10th सेकेंड पे इसकी वेलोसिटी क्या हो गई, 125। तो मीन्स इसकी वेलोसिटी क्या कर रही है, कंटिन्यूसली क्या करती जा रही है, टाइम के साथ बढ़ती जा रही है, इट इज इंक्रीजिंग विथ टाइम। तो अगर ओवरऑल ऑब्जर्व करें इस क्वेश्चन को, बिकॉज द वेलोसिटी इज नॉट कांस्टेंट एट डिफरेंट टाइम, इट्स वैल्यू इज डिफरेंट। ओके, सो आपका जो व्हीकल था वो शायद ये मेरे पहली स्पीड मेरे घर के पास थी, फिर मैं थोड़ा ओपन ब्रॉड रोड पे चली गई, और वी एक्स 125 मीटर पर सेकेंड, जब मैं फास्ट जा रही हूँ, मे बी मैं एक हाईवे पे जा रही हूँ जहाँ पे आज रश भी कम है, ठीक है, तो स्पीड क्या करते, वेलोसिटी क्या करती जा रही है हमारी, चेंज करती जा रही है, मीन्स योर व्हीकल पोजेस एक्सीलरेशन आल्सो, योर व्हीकल पोजेस एक्सीलरेशन आल्सो, सब जगह वेलोसिटी की वैल्यू पॉजिटिव ही आई है, मीन्स वो आगे ही जा रहा है, वापस नहीं आ रहा है, ठीक है। ये एक क्वेश्चन था और हमने इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की बात की थी, और हमें क्या निकालना था, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का क्या फॉर्मूला था, dx बाई dt, मैंने आपको डेरिवेटिव निकालना होता है, ये याद रखेंगे, ठीक है। अभी कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन माय लविंग स्टूडेंट, देखो अगले में वो क्या पूछ रहा है हमसे, उसी टाइप का क्वेश्चन है, अब ट्राई टू सॉल्व। चलो अपनी नोटबुक में भी सोल्व करो। इस बार उसने फिर से पोजीशन दी है
5t³ minus 2t² plus 4. दिस इज अगेन एक्स डिस्प्लेसमेंट है, मीन्स एक्स एक्सिस के लोग मूव कर रहा है, आई कैप लगेगा। अब क्वेश्चन भी स्टेटमेंट उसने बदल दिया, डिस्प्लेसमेंट दिया यहाँ पर उसने, डिस्प्लेसमेंट दिया है उसने, ठीक है। एवरेज एक्सीलरेशन निकालना है, एवरेज, ठीक है। और ध्यान रखो जब भी एवरेज वेलोसिटी पूछेगा, एवरेज एक्सीलरेशन पूछेगा, तो वो तुम्हें टाइम इंटरवल देगा। देखो टाइम इंटरवल दिया ना उसने, t=2 सेकेंड से लेके टू t=4 सेकेंड। यू हैव ए टाइम इंटरवल कि t की वैल्यू जब 2 सेकेंड आपकी स्टॉप वॉच इंडिकेट करे वहां से रीडिंग नोट डाउन करना शुरू करना, और जब तक स्टॉप वॉच में 4 सेकेंड पे ना आए पॉइंटर, तब तक आपको वैल्यूज क्या करनी है, नोट डाउन करनी, ठीक है। अब ये जो क्वेश्चन है आपके पास आ सकता है 4 मार्क में आ सकता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो डिस्प्लेसमेंट दी है और बात कर रहा है एक्सीलरेशन की। हमें तो ये पता है कि भाई वेलोसिटी की वैल्यू dx/dt होती थी और एक्सीलरेशन की वैल्यू dv/dt होती थी, अगर इंस्टेंटेनियस है, इंस्टेंटेनियस की बात करते हैं तो, ठीक है। एवरेज वेलोसिटी है, एवरेज वेलोसिटी कैसे निकालते थे, एवरेज वेलोसिटी v2 माइनस v1, ओके, x2 माइनस x1 अपॉन t2 माइनस t1, कल निकाली थी हमने, ठीक है। तो अभी हम क्या करते हैं, बिकॉज ही इज सेइंग द एवरेज एक्सीलरेशन, एवरेज एक्सीलरेशन का भी हमारे पास फॉर्मूला क्या है, ये इंस्टेंटेनियस का डेरिवेटिव है तो इंस्टेंटेनियस है, और अगर एवरेज है तो आपको करना है v2 माइनस v1 अपॉन t2 माइनस t1। इंटरवल ऑफ टाइम की बात करें, फाइनाइट इंटरवल ऑफ टाइम है। इंस्टेंटेनियस में द टाइम इंटरवल अप्रोचेस टू 0 होता है, लेकिन एवरेज में दिस टाइम इंटरवल इज हैविंग वेरी फाइनाइट वैल्यू, नॉन जीरो रहेगा, इट विल बी लार्ज वैल्यू, ओके। तो यहाँ पर एक्सीलरेशन निकालना है, फॉर्मूले में क्या है, v2 माइनस v1 अपॉन t2 माइनस t1। अब यहाँ पर ये t2 हो गया 4 सेकेंड और t1 हो गया 2 सेकेंड। चलो टाइम इंटरवल तो निकल गया, हमें और क्या निकालना है, v2 माइनस v1। हमारे पास ये जो दो वेलोसिटीज हैं, t=2 सेकेंड पे क्या वेलोसिटी थी, t=4 सेकेंड पे क्या वेलोसिटी थी, वो वैल्यूज अभी हमें मालूम नहीं है, तो वो कैसे फाइंड आउट करें। यस इट्स इजी, सो फर्स्ट वी फाइंड आउट द वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, यहाँ पे v2 माइनस v1 है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटीज हैं, तो फॉर्मूला लगाते हैं फिर से dx/dt का, ठीक है। फॉर्मूले में मैंने x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट की, आई हैव ओपन ऑल द ब्रैकेट्स, डेरिवेटिव ऑफ t³ विल बी, t³ का डेरिवेटिव क्या होगा, मल्टीप्लाई बाय ओल्ड पावर फंक्शन रिड्यूस द पावर बाय 1, तो ये क्या आएगा, सॉरी ये 3 है, 3 माइनस 1 2, सो दिस विल बी 3t², वही वैल्यू लिखी है मैम ने, और एक यहाँ पर ऑलरेडी 5 है, अगर यहाँ पर एक 5 है, वेयर इज माय पेन नाउ, अगर यहाँ पे क्योंकि 5 भी दिया है, दिस बिकम्स, because the 5 is there also and substituting here, so this becomes 15t², 2t², 2 will be a constant, t² derivative will be 2t, 2 into 2t, this will become minus 4t, minus is already there, again 4, its derivative will be 0. So from here, from the displacement given, you have find out the velocity, how this velocity is changing with time. Now the two time values are given, first time value t1 equal to 2 second, I am saying the velocity is now v1, substitute the value of t 15, t², t equal to 2 पुट किया, माइनस 4t, t equal to आपने यहाँ पे 2 पुट किया, when you solve it this becomes v1 52 मीटर पर सेकेंड, ओके। अब सेकेंड वेलोसिटी निकालो कब, 4 सेकेंड पर, तो t की वैल्यू आपने 4 पुट करी है, सोल्व किया, एंड दिस गिव्स यू v2 इज इक्वल्स टू 224, ये क्यों कर दिया मैंने, v2 की वैल्यू एक बार चेक करना, दिस विल गिव यू 224 मीटर पर सेकेंड। अभी फॉर्मूला लग सकता है क्या, देखो हमें उसने एवरेज एक्सीलरेशन पूछा था, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी नहीं, क्यों निकालनी पड़ी आपको इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, बिकॉज ही हैज गिवन यू टू फाइंड एवरेज एक्सीलरेशन, फॉर्मूला फॉर एवरेज एक्सीलरेशन इज v2 माइनस v1 अपॉन t2 माइनस t1, these two times are given but these two velocities were not given, okay। what was the velocity at t equal to 2 second,
what was the velocity at t equal to 4 second? तो ये t equal to 2 second, it means we are talking about instantaneous velocity at t equal to 2 second, and we are talking about instantaneous velocity at t equal to 4 seconds. So you have to apply the formula of instantaneous velocity. We have find the instantaneous velocity at any time t, then substitute the value of time t equal to 2 second, t1 equal to 2 second, t2 equal to 4 second, and you find out the initial and final velocities. Now the time has come and we will go for the substitution. So acceleration, the formula for acceleration was v2 minus v1 अपॉन t2 minus t1. तो आपने वैल्यूज पुट की हैं, सॉल्व किया, इट विल गिव यू 86 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ठीक है, फॉर्मूला मुझे पता है, तुम्हें याद रहेगा. गलती कहाँ कर सकते हो, जब तुम डेरिवेटिव निकालोगे. तो डेरिवेटिव थोड़ा सा केयरफुली निकालना है. ठीक है, और एक कॉमन गलती और कहाँ पे होती है वो भी बताती हूँ. बच्चे क्या करते हैं, अब ये एवरेज एक्सीलरेशन पूछा था है ना, तो क्या करेंगे, एक्सीलरेशन निकालना है. अच्छा, ये तो dv बाई dt होते हैं, और इसका डिस्प्लेसमेंट की टर्म में क्या होता है, डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर भी होता है. तो ठीक है, एक्सीलरेशन, और यहाँ पे डी बाई डी स्क्वायर अपॉन डी टी स्क्वायर, एक्स की वैल्यू जो मैम ने दी है वो सब्स्टिट्यूट की और डिफ्रेंशिएट कर दिया. ये कौन सा एक्सीलरेशन आ जाएगा, ये कौन सा एक्सीलरेशन आ जाएगा अगर ऐसे किया. अगर ऐसे करोगे तो इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन आएगा, और हमें इंस्टेंटेनियस नहीं चाहिए. क्वेश्चन में क्या पूछे है, स्टेटमेंट को केयरफुली रीड करना है. कभी कभी हमें ओवर कॉन्फिडेंस होता है ना, तो अपन स्टेटमेंट को अच्छे से रीड नहीं करते और लगते हैं फटाफट डिफ्रेंशिएट करने. तो वो चीज़ थोड़ी सी ध्यान रखना. व्हाट द क्वेश्चन इज अबाउट, इज इट अबाउट एवरेज एक्सीलरेशन और इज इट अबाउट इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन, एंड अकॉर्डिंगली अप्लाई फॉर्मूला. ठीक है, होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर. लेट अस गो टू द नेक्स्ट वन. अभी यहाँ पर ध्यान से करिए. ठीक है, मुझे पता है मेरे बच्चे बहुत अच्छे हैं, ये मेरा स्पेशल बैच है. जब मैं क्लास टीचर होती हूँ तो वो मेरा स्पेशल बैच होता है. अभी हमारे पास क्या स्टेटमेंट है लविंग स्टूडेंट्स, फाइंड इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन. इंस्टेंटेनियस की बात करें, ठीक है, किस टाइम इंटरवल पे, देखो टी इक्वल टू 2 सेकेंड पे. मैंने बोला था ना, जब इंस्टेंटेनियस की बात करेगा तो एक ही टाइम देगा. For a particle whose position as a function of time is x equal to 3 minus 4t plus 8t square. देखो अभी एवरेज एक्सीलरेशन नहीं कह रहा, अभी क्या कह रहा है, इंस्टेंटेनियस. तो हमें x दिया है, डिस्प्लेसमेंट दिए, तो वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का फॉर्मूला लगाया आपने उसे डिफरेंशिएट किया, तो ये आपके पास इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी आ गई 16t minus 4. Then the formula for acceleration is ax is equals to dvx by dt. वैल्यू ब्रैकेट ओपन कर दी, d ऑफ 16t माइनस d बाई डी टी ऑफ 4. तो ये 4 का डेरिवेटिव, ये तो 0 ही हो जाएगा, और t का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t 1. सो एक्सीलरेशन इज 16 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. लेकिन इनने तो इक्वल टू 2 सेकेंड पूछे हैं. तो देखो यहाँ पे केयरफुली ऑब्जर्व करो, एक्सीलरेशन का जो फॉर्मूला आया है उसमें टाइम डिपेंडेंस नहीं आई है. इट इज गिविंग नंबर. देयर इज टी लाइक टर्म लाइक 16t स्क्वायर माइनस 2t, कुछ ऐसा आया ही नहीं हमारे पास. ax is simply 16 meter per second square. It means your vehicle is moving with a constant acceleration of 16 meter per second square. There is no time dependence. t equal to 2 सेकेंड पे कहो, t equal to 10 पे कहो, t equal to 20 पे कहो, t equal to 30 पे. You can say any time and its acceleration will remain same 16 meter per second square. This will be the value of acceleration and it is, यहाँ पे मैंने mention भी किया, यहाँ पे time dependency नहीं है, it will remain constant. टाइम की वैल्यू कुछ भी हो, 20, 30, 40, 60, कुछ भी. ये पर्टिकुलर क्वेश्चन के डिस्प्लेसमेंट इस टाइप से है, दैट पार्टिकल विल ट्रेवल विथ कांस्टेंट एक्सीलरेशन. आई एम सेइंग कांस्टेंट एक्सीलरेशन. स्पीड कांस्टेंट है क्या, एक्सीलरेशन कांस्टेंट है क्या, देखना जरा. व्हाट कैन यू से अबाउट द स्पीड, व्हाट कैन यू से अबाउट द वेलोसिटी, इज इट कांस्टेंट और इज इट चेंजिंग विथ टाइम. वेलोसिटी का क्या फॉर्मूला, चेंजिंग विद टाइम. कांस्टेंट है वेलोसिटी, नहीं मैम.
नहीं है, देखो यहाँ पर, ये देखो क्या फॉर्मूला आया था वेलोसिटी का, 16t-4, ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी थी। अगर मैं t की वैल्यू बदल दूं, 1 पुट करूं, 2 पुट करूं, 3 पुट करूं, अगर t की वैल्यू सपोज आपने 1 पुट करी, 16-4, तो ये हो गया 12, ठीक है। अगर आपने t की वैल्यू 2 कर दी, 32-4, 28, तो वेलोसिटी क्या कर रही है, इट इज चेंजिंग विथ टाइम। वेलोसिटी जो है इट इज चेंजिंग विद टाइम है, तो यहाँ पर ये नहीं लेके चलना, ठीक है। आई विल राइट हियर वेलोसिटी इज चेंजिंग, और वेलोसिटी बदलेगी तभी तो एक्सीलरेशन आएगा, वेलोसिटी कांस्टेंट होती तो एक्सीलरेशन जीरो ही होता है ना। तो यहाँ पर क्योंकि मेरे पास ये देखो टाइम प्रेजेंट है, टी की अलग अलग वैल्यू पुट करेंगे तो वी एक्स की वैल्यू भी क्या आएगी, अलग अलग आएगी, इसलिए वेलोसिटी जो है वो हमारी चेंज कर रही है सॉरी। बट एक्सीलरेशन में टी वाली टर्म नहीं है, तो एक्सीलरेशन हमारा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। अगर आपके पास, अगर किसी ने कहा वेलोसिटी जो है ना वो 5 है, ठीक है, तो एक्सीलरेशन क्या होगा, एक्सीलरेशन क्या होता है, dv/dt, तो एक्सीलरेशन ए dv/, 0. वैल्यू क्या, 5, एक्सीलरेशन तो क्या होएगा, 0 है। क्यों 0 है, और देखो चीजों का कॉन्सेप्ट क्लियर करो। अभी हमने क्या कहा था, एक्सीलरेशन इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, एक्सीलरेशन इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, बट दिस इज अ कांस्टेंट वेलोसिटी। मैंने तुम्हें कह दिया कि वेलोसिटी 5 ही है, because the velocity is constant, it is not changing with time, so why we are talking about its variation with time, it is constant, so acceleration will be 0 अगर आप 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ही चलते जा रहे हो, आप ना तो स्पीड ब्रेकर पे चेंज कर रहे हो, ना सिग्नल पे, ना ट्रैफिक की वजह से, देन द एक्सीलरेशन विल बी 0, ठीक है। डेली लाइफ में ये होता नहीं है, बहुत बार हमारे पास रिटार्ड नेगेटिव एक्सीलरेशन भी आता है, पॉजिटिव भी आता है, ठीक है। अगले एग्जांपल थोड़े उनसे डील करके चलेंगे। अभी नोटबुक रेडी है ना, अभी अगला क्वेश्चन तुम्हें मिलने वाला है करने के लिए, तो ये समझ आ गया, इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन की बात की थी हमने, तो हमने एक्सीलरेशन का फॉर्मूला dvx/dt लगाया था। इससे पहले क्वेश्चन में एवरेज था, तो v2-v1/t2-t1, यहाँ से एक क्वेश्चन पेपर में आएगा लविंग स्टूडेंट जरूर, ठीक है, इसलिए बहुत धीरे धीरे करवा के लेके चलियो। एक क्वेश्चन मैंने बोला था ग्रेविटेशनल 4 फोर्सेस में से एक क्वेश्चन बनता है, गिव द करेक्टरिस्टिक ऑफ दिस फोर्स। अगर डिफरेंस वाला क्वेश्चन आता है तो डिफरेंशिएट बिटवीन इनर्शियल फ्रेम एंड नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट द थर्ड क्वेश्चन, दैट इज न्यूमेरिकल, you will be asked one numerical of this type in the paper, ठीक है। अब ध्यान रखना, ये मैं पीपीटी तो शेयर करूंगी तुम्हारे साथ, वो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वी विल शेयर दैट। अब ये क्वेश्चन तुम करोगे, मैं नहीं कर रही हूँ, ठीक है। आई विल गिव यू 3 minutes एंड यू स्टार्ट सॉल्विंग दिस क्वेश्चन। 9-10 हुए, 9-13 तक सॉल्व होना चाहिए। और जब मैं बोलती हूँ ना व्हाट्सएप, तो मेरे पास सिर्फ 4-5 बच्चों का व्हाट्सएप आता है, बाकी लोग व्हाट्सएप नहीं करते। ऐसे मत करो भाई, क्यों लड़ाई करते हो, प्यार से रहना चाहिए ना अपने को, और क्लास टीचर से ही लड़ाई करते हो तुम तो। चलो सोल्व करो। अभी मैंने फॉर्मूला लिख के रखा है, देखो ऑलरेडी फॉर्मूला मैंने लिखा ही है, तो वही फॉर्मूला अप्लाई करना है। 3 minutes टू सॉल्व। अरे मेरा पेन एक्टिवेट नहीं हुआ, इज इट नाउ, यू हैव टू अप्लाई दिस फॉर्मूला। और एक पहले बता देती हूँ, वेलोसिटी दी है इस बार मैंने, डिस्प्लेसमेंट नहीं दी है, ठीक है। चलो करो, शाबाश, गुड स्टूडेंट्स, आई लव यू माय लविंग स्टूडेंट्स। I'm 15. 15, अच्छा मैंने तो सॉल्व नहीं किया, आंसर लिखा नहीं, कहीं नहीं सॉल्व किया मैंने, वो नोट्स नहीं लिख के बैठी मैं जिसमें मैं सॉल्व करती हूँ, जरूरत नहीं है, मेरे को पता है मेरे पास बच्चे बहुत अच्छे हैं। करते हैं, 1 मिनट रुको, सबको टाइम दे देते हैं।
मैम ये क्या लिख रहे हो आप? फिर और क्या करूंगी? वेलोसिटी दिया मैंने, एक्सीलरेशन थोड़ी दिया मैंने, पहले ही हाईलाइट किया देख। व्हाट द मैम इज सेइंग, आई हैव गिवन यू। -10 वापिस आओ जल्दी से, मुझे लगता है तुम बहुत सारे डिफरेंशिएशन कर दोगे, फिर मुश्किल होगा। -10 मैम ने क्या दिया इस बार? मैम ने आपको तंग करा। आपने क्विज अटेम्प्ट नहीं किया ना कोल पोल पे, इसलिए तंग किया मैंने। आज करना है अटेम्प्ट कोल पोल वाला क्विज, ठीक है। वेलोसिटी दी है मैंने, अगर डिस्प्लेसमेंट दी होती, अब तुम्हें एवरेज एक्सीलरेशन का जैसे तुमने क्वेश्चन पढ़ा, तुमने देखा एवरेज एक्सीलरेशन, ठीक है, ये तो मैम ने करवाया है। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालनी है, अरे भाई इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालनी है, वो बात सही है, पर यहाँ तो देखो मैंने वेलोसिटी दी है, वेलोसिटी का फॉर्मूला दिया है 5 - 5t²। तो टाइम की वैल्यू, इंटरवल क्या है, पहला टाइम है 0, तो मैंने टाइम की वैल्यू 0 पुट की, तो मेरे पास आ गया इनिशियल वेलोसिटी 35 मीटर पर सेकेंड थी। फिर टाइम की दूसरी वैल्यू पुट करो 2 सेकेंड, ठीक है। तो ये वेलोसिटी आ गई आपके पास 15 मीटर पर सेकेंड। तो आपके पास इंस्टेंटेनियस वेलोसिटीज आ गई ना डायरेक्ट, ठीक है। अब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटीज को यहाँ फॉर्मूले में पुट कर दो। मुझे पता था डिफरेंशिएट कर दोगे, मैंने भी पहले डिफरेंशिएट कर दिया था जब मैं पढ़ रही थी। V2 माइनस V1, V2 की वैल्यू क्या है 15, ये नहीं कि भाई 35 - 15 कर दो, फॉर्मूला क्या है V2 माइनस V1, फाइनल माइनस इनिशियल है, ठीक है। तो 15 माइनस 35, और टाइम इंटरवल क्या है, टाइम इंटरवल क्या है 2 माइनस 0, फाइनल t इक्वल टू 2 है, इनिशियल 2, और इनिशियल क्या है 0। तो ये हो गया -20/2। -10 आ रहा है आंसर। ओ सॉरी, माइनस एवरेज एक्सेलरेशन, रुक तो करने तो दे हमें, -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ गया, ये मेरे पास एवरेज एक्सेलरेशन की वैल्यू आई है। रिटार्डेशन भी कह सकते हैं बेटा इसे, क्योंकि एक्सेलरेशन नेगेटिव होने का मतलब स्पीड कम हो रही है। देखो इनिशियली क्या थी 35 थी, शायद हमने ब्रेक लगा दिए तो वो 15 पे आ गई है, 15 हो गई है। वो स्पीड क्या कर रही है, वेलोसिटी क्या कर रही है, डिक्रीज कर रही है। मैम डिक्रीज होती है तो हम उसे क्वेश्चन रिटार्डेशन कहते हैं। हाँ एक्सेलरेशन जी, पूछा है। हाँ बोलो। मैम क्वेश्चन में तो एक्सेलरेशन पूछा है ना। एक्सीलरेशन ही तो पूछे, वही तो बता रही हूँ, एवरेज एक्सीलरेशन। आप नेगेटिव एक्सीलरेशन क्यों, रिटार्डेशन हुआ। एवरेज एक्सीलरेशन ही तो निकाला है हमने, उसका फॉर्मूला लिखा v2 माइनस V1 अपॉन T2 माइनस T1। V2 क्या है, वेलोसिटी एट टाइम T2, V1 क्या है, वेलोसिटी एट टाइम T1। तो वेलोसिटी, अब तो उसे कंफ्यूज मत करो, इन पहले क्वेश्चन में डिस्प्लेसमेंट दी होती थी तुम्हें, तो तुम्हें वेलोसिटी निकालनी पड़ती थी dx/dt करके। इस बार मैम ने तुम्हें क्या किया, शॉर्टकट दिया है, वेलोसिटी दे दी है। तो तुम वेलोसिटी, अगर तुम्हें पता है हाउ द वेलोसिटी इज चेंजिंग विद टाइम, टी दिया है ना इसमें, तो उसने जो टाइम दिए, सब्स्टिट्यूट डायरेक्टली दैट टाइम वैल्यूज एंड फाइंड द वेलोसिटीज, find the velocities at given instant of times, substitute in the you will get the average acceleration। और ये नेगेटिव आया, ठीक है। वो ये भी कह सकते हैं कमेंट ऑन द नेगेटिव वैल्यू। व्हाट डू यू मीन बाय नेगेटिव का क्या मतलब हुआ, नेगेटिव का क्या मतलब, तो आप यहाँ पे वेलोसिटीज का वैल्यू देखो भाई, पहले 35 थी, अभी कितनी हो गई है, 15 हो गई है, 15 हो गई है, बढ़ने की बजाय कम हो गई है। जब हमारा, जब स्पीड ब्रेकर आ रहा है, सिग्नल आ रहा है, तो आप ब्रेक लगाना शुरू कर देते हो ना, स्पीड वेलोसिटी क्या होना शुरू कर देते हैं, डिक्रीज होना शुरू कर देते हैं। तब आप गाड़ी को एक्सीलरेट नहीं कर रहे होते हो, आप रिटार्ड कर रहे होते हो, उसके मोशन को अपोज कर रहे होते हो, ठीक है। दैट नेगेटिव एक्सीलरेशन मीन्स योर vehicle speed is decreasing, its velocity is decreasing, it is coming to rest, that is called average acceleration। जब गाड़ी प्लेटफॉर्म से निकलती है, प्लेटफॉर्म से निकलती है, जब हम आपको भेजते हैं पिकनिक पे, सी ऑफ करते हैं, बाय बाय बोलते हैं, तो गाड़ी की स्पीड धीरे धीरे बढ़ती चली जाती है, एक्सीलरेट होती है, ठीक है। लेकिन जब अगला स्टेशन आने वाला होता है, तो धीरे धीरे ब्रेक अप्लाई करना शुरू करता है ड्राइवर, तो गाड़ी की स्पीड कम होना शुरू होती है, और वो इस ढंग से रिटार्डेशन अप्लाई करता है कि प्लेटफॉर्म पे जाके रुके गाड़ी, प्लेटफॉर्म क्रॉस नहीं कर जाए। प्लेटफॉर्म को छोड़ा तो एक्सीलरेट होती है ट्रेन, प्लेटफॉर्म को रीच कर रही है, इट इज अराइविंग एट अ स्टेशन, देन इट्स मोशन विल बी रिटार्डेड, ठीक है। ये नेगेटिव और पॉजिटिव एक्सीलरेशन का ये मतलब है। नेगेटिव का मतलब ब्रेक्स आर अप्लाइड, योर बॉडी इज कमिंग टू रेस्ट, इट्स स्पीड इज डिक्रीजिंग, ठीक है। और पॉजिटिव का मतलब अपनी अपनी स्पीड अभी बढ़ा दी है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन,
अब यहाँ पर पहले क्वेश्चन जैसा है, ठीक है, लेकिन इसे फिर से सॉल्व करो। टाइम इंटरवल बदल दिया मैंने, टाइम बदल दिया, 4 सेकेंड है और t इक्वल टू 5 सेकेंड है। चलो पहले की तरह ही है, थोड़ा ध्यान से सोल्व करेंगे। देखो फिर से मैंने वेलोसिटी दिया है, डिस्प्लेसमेंट नहीं दिया है। इट इज सेइंग दैट दिस इज हाउ द वेलोसिटी इज चेंजिंग। फाइंड इट्स एवरेज एक्सीलरेशन। एवरेज एक्सीलरेशन निकालना है। टाइम दिया है मैंने, t1 भी दिया है, t2 भी दिया है। क्या नहीं दिया मैम ने? मैम ने v1 v2 नहीं दिया, पर v तो दिया है। चलो निकालो जल्दी से। पहले के जैसे ही है, एग्जैक्टली वही है। वैल्यू पुट करनी है जो, वो चेंज कर जाएंगे, बस थोड़ा सा वो केयरफुली लेके चलो। सो v इज इक्वल टू 35 माइनस 5t²। ठीक है, वही पॉजिटिव नेगेटिव का कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। तो v1 की वैल्यू पुट करती हूँ। कब आएगा v1? जब टाइम की वैल्यू मेरे पास 4 सेकेंड है। ठीक है, फिर v2 35 माइनस 5, t की वैल्यू क्या है मेरे पास? 5। तो v1 कितना आ रहा है मेरा? 16 5 80, 80 माइनस 35 5 माइनस 45। यस यस, शाबाश, माइनस 45 मीटर पर सेकेंड। और v2 की वैल्यू क्या आ रही है मेरे पास? 35 माइनस 5 स्क्वायर 25 125 95 माइनस 95 मीटर पर सेकेंड। आई एम करेक्ट? मैम ये माइनस का क्या आया 90, मैम? माइनस 90। माइनस 90 ये मेरी फाइनल वेलोसिटी है और ये मेरी इनिशियल वेलोसिटी है। अब ये वैल्यू एवरेज एक्सक्यूज मी मैम, निकालो, सब्स्टिट्यूट करते हैं। माइनस 90 माइनस ऑफ माइनस 45 कितना आएगा? ए एवरेज मैम माइनस 45 आंसर आ रहा है। 45 माइनस 40। अरे एक मिनट, मैं भी लिख दूं, रुको रुको, तुम आगे निकल गए, ओल्ड लेडी को पीछे छोड़ के चले गए। ये आ गया एवरेज एक्सीलरेशन माइनस 45 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या मतलब हुआ इसका? नेगेटिव एक्सीलरेशन का क्या? स्पीड डिक्रीज हो रही है। ब्रेक अप्लाई कर दिए, स्पीड इज डिक्रीज। एडिशन हो रहा है। वेलोसिटी क्या कर रही है? डिक्रीज कर रही है। ठीक है, हेलो स्टूडेंट्स, आर यू फॉलोइंग मी और नोट? ठीक है, फॉलो करो? यस मैम। ओके, एक और ठीक है। क्वेश्चन दे। चलो एक और क्वेश्चन लिखते हैं अगली स्लाइड पे। चलो यहीं पे करती हूँ भी, फिर मैं नेक्स्ट स्लाइड पे जाऊंगी, वो खाली पहले टाइम लेगा। ओके गो, दिस इज द प्रॉब्लम दैट यू हैव टू सॉल्व नाउ। ठीक है, यू हैव गिवन अ डिस्प्लेसमेंट x इज इक्वल टू 4t क्यूब plus 3t plus 4. This is how the displacement x is changing with time. X is in meter, time is in second. What the ma'am is asking? Ma'am is asking you to find expression for instantaneous velocity and instantaneous acceleration. सिर्फ एक्सप्रेशन निकालना है। ठीक है, कोई टाइम इंटरवल नहीं दिया मैंने, टाइम मोमेंट नहीं दिया। ठीक है, फाइंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन से एनी टाइम t। चलो अब ये सॉल्व करो फटाफट, तब तक मैं जाती हूँ नेक्स्ट स्लाइड पे। ठीक है, हैव यू नोटेड डाउन द क्वेश्चन माय लविंग स्टूडेंट? इट इज देयर ओनली 4t क्यूब प्लस 3t प्लस। चलो मैं जाती हूँ स्लाइड पर। ओहो, मैंने ये भी करना था। ठीक है, कोई बात नहीं, नेक्स्ट करते हैं अपन। देयर आर सो मैनी क्वेश्चंस आई हैव रिटन फॉर यू। हाँ, टाइम क्या है? सिमिलर आर देयर। आज ये पीपीटी लेक्चर कंप्लीट होने के बाद ना, ये पीपीटी मैम बोर हो गए न्यूमेरिकल्स कर न्यूमेरिकल्स थियरी करा दो। बोर हो गए बस, तभी मैंने बीच की वो 3 स्लाइड स्किप कर दी। मैं वो सोल्व करूंगी और फिर पीपीटी अपलोड कर दूंगी कॉल पोल पे। ठीक है,
तो आप अपलोड, बस ये लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद अगले लेक्चर में अपन बहुत सारी थ्योरी करेंगे, ठीक है, नो प्रॉब्लम। मुझे बच्चे मेरे थक जाते हैं इसलिए फिर क्या, लेकिन पेपर में आएगा ना, फिर बेटा अपने को करना तो पड़ेगा। और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का क्या फॉर्मूला था, dx बाय dt, और आपको सोल्व करने हैं 4t³ प्लस 3t प्लस 4 v इज इक्वल्स टू डी बाई, और पेपर में देखो अपने को सारे स्टेप्स लिखने हैं, क्योंकि एवरी स्टेप जो रहता है वो मार्क्स कैरी करता है, तो कहीं किसी स्टेप में गलती भी होगी तो वो फिर उसी के मार्क्स कटेंगे, पूरा गलत नहीं होगा। t³ का डेरिवेटिव 4 एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ t³ मल्टीप्लाई बाय ओल्ड पावर फंक्शन रिड्यूस द पावर बाय 2, क्यूब था तो स्क्वायर हो गया, t derivative of t is 1, derivative of 4 is 0, so instantaneous velocity is 12 t square plus 3। ये आ गई आपके पास इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, ठीक है। वैभव सर का लेक्चर है तुम्हारा, इसके बाद एक्सीलरेशन निकालना है तो dv बाई dt था, है ना, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अपन 1 मिनट में सॉल्व कर देंगे। 12t² प्लस 3, तो ये एक्सीलरेशन निकालना है, हर एक स्टेप को सोल्व करना है। आई नो बोर हो जाते हैं अपन स्टूडेंट्स, प्लीज आज कोल पोल का क्विज जरूर सबमिट कर देना, नाराज हो तो भी बताते क्यों नहीं। 24। ये t² का डेरिवेटिव 2t और 3 का डेरिवेटिव 0, तो एक्सीलरेशन जो है वो आपका क्या आया 24। हाँ, अभी देखो वेलोसिटी में भी टाइम आ रहा है, एक्सीलरेशन में भी टाइम आ रहा है। व्हेन वी सब्स्टिट्यूट t इक्वल टू 1 2 3 4, एक्सीलरेशन विल बी डिफरेंट, ठीक है। पहला एक केस किया था उसमें एक्सीलरेशन कांस्टेंट था, बट हियर द एक्सीलरेशन विल बी डिफरेंट एट डिफरेंट टाइम इंस्टेंट्स एट डिफरेंट टाइम इंटरवल्स, ठीक है। आज के लिए यहीं पे स्टॉप करती हूँ, ये 2-3 जो क्वेश्चन है ना बीच में स्लाइड स्किप करी, आई विल सॉल्व देम एंड देन आई विल शेयर द पीपीटी ऑन द कॉल पोल, ठीक है। नाउ आई एम गोइंग टू स्टॉप माय प्रेजेंटेशन, यू जस्ट वेट, वेयर इज माय टीम। मैम लेक्चर कैन वी शेयर? क्या लेक्चर का क्या? मैम लेक्चर सेंड कर देना ना आज भी। हाँ वो ठीक है। स्टूडेंट्स एक काम करो, आज एक प्लीज कॉल पोल का, अभी नहीं कह रही हूँ, 5 बजे तक कॉल पोल पे क्विज ओपन है, 5 o'clock तक, ठीक है। तो आज तुम्हारे 3 ही लेक्चर है ना, एक तो हो गया, 2 लेक्चर हो रहे हैं, आप आराम से खाना वाना खाओ, 4 बजे बैठ के क्विज सोल्व करो और क्विज को सबमिट कर दो प्लीज, ठीक है। एंड टुडे आई विल फॉरवर्ड द असाइनमेंट आल्सो। आपको क्विज सोल्व, आपको वीडियो बनानी है तो आप वीडियो बना लो, पोस्टर बनाना है पोस्टर बना लो, स्लाइड्स पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बना लिए तो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बना सकते हो, उसके ऊपर मैंने रूल्स, इसको क्या रूल्स फॉलो करने हैं, ठीक है जी, ज़्यादा लंबा चौड़ा काम करना। अभी अपन क्या कर सकते हैं, लेट मी चेक, समवन इज आस्किंग क्वेश्चन, ओके यू आर मार्किंग योर अटेंडेंस, ओके इन द प्रोसेस ऑफ लिविंग, ठीक है, ओके स्टूडेंट, डू यू वांट टू आस्क एनी क्वेश्चन, एनी क्वेरी? I will also share the drive link where the books are there. If you have any query, you can ask. Or then the lecture, otherwise the lecture is over. You can leave the meeting, my loving student. Thanks for your patience. Thanks for your cooperation. कि आप सुबह सुबह 8:30 का lecture attend करें. Thanks a lot, my loving students. बाय मैम। थैंक यू मैम। Dear, थैंक यू bye. मैम। बाय मैम। मैम लेक्चर शेयर कर देना मैम। Lecture share. बाय मैम। हाँ लेक्चर शेयर कर दूंगी, आज मैं मेल आईडी शेयर करूंगी। थैंक यू तो मैम। मैंने कल का भी शेयर किया था, फिर वो कुछ एक्सेस का प्रॉब्लम आ रहा था, तो जिन्होंने भी ओपन किया था उनको मैंने एक्सेस की परमिशन दी है, लेकिन कुछ लोगों ने ओपन ही नहीं किया, तो फिर मैं परमिशन कैसे दूंगी ना, बराबर, राइट मैम। है ना। आप लेक्चर पे एटलीस्ट क्लिक करो, तो मेरे पास मेल आती है रिवर्ट होके कि परमिशन एक्सेस चाहिए इस बच्चे को, तो फिर मैं यस कर देती हूँ तो आपको परमिशन मिल जाती है बेटा, ओके मैम। ठीक है। और कल परसों में मैं यूट्यूब पे डाल दूंगी तो फिर प्रॉब्लम नहीं आएगी, फिर तुम आराम से वहां से काम कर सकते हो। ओके मैम, थैंक यू जस्ट मैम। अवर लेक्चर रिकॉर्डिंग्स, जो भी हम क्लास में बात करते हैं वो सब है उसमें, ठीक है, दे आर लेक्चर रिकॉर्डिंग्स।
Okay. ओके लविंग स्टूडेंट्स। मैम हाँ जी, हाँ प्रथमेश, मैम वो यूट्यूब का भी शेयर किया था ना, वो मिलता है क्या, ओपन होते हैं? हाँ मैम हो रहा है अच्छा ठीक है, क्योंकि वो मैंने क्यों इसको मैम इट इज अ प्राइवेट वीडियो बोल के दिखा रहा है हाँ हाँ, वो मैंने पता है प्राइवेट में ही रखी थी, क्योंकि वो लेक्चर वैसे नहीं है ना, दे आर जस्ट द रिकॉर्डिंग्स। तो ओपन हो रही है तो मैं लिंक मैं उसे नहीं पब्लिक करूंगी, तो तुम्हें डाउनलोड करने तो डाउनलोड ना, ठीक है, क्योंकि रिकॉर्डिंग्स वहाँ पे यूट्यूब Ma'am, पे। can we leave? हाँ Can we leave? हाँ हाँ, यस यू कैन लीव। मैम आपने जो ड्राइव भेजा है ना उसको कुछ समझ नहीं रहा, फिजिक्स बुक्स एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर फिजिक्स कुछ समझ नहीं रहा। एएम एटॉमिक एंड पीपीए स्वामिनी मैम का क्या? नहीं मैम आपका ही है। मेरा ये एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर फिजिक्स। नहीं पता मैम, फिजिक्स बुक्स करके आया ड्राइव में। अच्छा तो वो अच्छा ठीक है, तो उसमें ये समझ नहीं आ रहा तुम्हें कि तुम्हारी बुक्स कहाँ पर है, क्योंकि उसमें पूरी फिजिक्स बुक है। अच्छा मैं ठीक है, मेल करूंगी ना अभी, लेक्चर लिंक जब शेयर करूंगी तो उस हाँ डाल मैम। देती हूँ, या फिर असाइनमेंट में डाल के भेजती हूँ। ओके मैम, ठीक है, थैंक यू। इंजॉय वीकेंड माय लविंग स्टूडेंट्स। यस मैम, यू टू, हाँ बाय। सेम, थैंक यू माय लविंग स्टूडेंट। मैम हाँ जी प्रथमेश। मैम आपने कोई प्रेजेंटेशन के टॉपिक्स बताए नहीं मैम हाँ मैंने प्रेजेंटेशन के टॉपिक को असाइनमेंट 1 है ना, आज वो अभी अपलोड करूंगी मैं आज। क्योंकि कल सैटरडे Assessment मैम आएगी। टाइम रहता है तो उसे कंप्लीट मैं हो जाएगा बहुत सारा टाइम देने वाली हूँ, दशहरे के आसपास लूंगी उसकी प्रेजेंटेशन, दशहरे के तक टाइम दूंगी तुम्हें। तो अभी तो नवरात्रे भी शुरू नहीं हुए, बहुत सारा टाइम दूंगी, 25 28 तक दूंगी, और आज अभी कितनी डेट हुई है, 9, मतलब 2 हफ्ते दूंगी तुम्हें बेटा कंप्लीट करने के लिए। थैंक यू मैम लॉन्ग लॉन्ग टाइम देती हूँ मैं, आराम से करना है, ठीक है। चलो ओके माय लव, थैंक यू मैम बाय। कैन वी लीव मैम yes you can leave now my loving students, you have now electronics lecture na।